few of you have been working on container ships, bulk carriers, tankers. So what is stowage? So of course you are a little familiar. When cargo is loaded, some planning is done. And when that planning is done, so a lot of information is required. So it is stowage. We will see that. Can you tell me, if you are planning to load in a cargo hold, what all information you need? If somebody tells you are going to load so many tons of cargo, so what information as a cargo officer you need to know before you can do your calculations? Total room available in the cargo hold, total weight of the cargo, type of cargo, yes. Yeah. So say before that you want to know actually what is the space, how much space your cargo hold has. Density. Yeah, load density also. So also you want to know the very first thing is that जो मेरा cargo hold है, Storage factor, sir. Capacity कितनी है? Yeah, storage factor also. Then only we can see how much cargo the ship can take, isn't it? So सबसे first thing comes is I have to have the information about my own ship, about my own cargo hold, that what is the capacity of my hold. Then only you can tell the company they can book so much of cargo, isn't it? So ये जो आपकी capacity है, first of all, now most of you have seen the cargo holds. Now what this capacity is, so let me take you to the board, and ये capacities, how they are defined, where they are given. You must have seen these ship's capacity plans. And if we, I hope all of you can see the board. Yes, sir. Now, very simple thing, I have the cargo hold of a ship looks like this. The hatch opening. So first thing I want to know, what is the space available, what is the capacity of my cargo hold. Now capacity is basically, if you see, the ship's hold have got a lot of structure inside, like your frames on the sides. Of course, you have the double bottom there, and sometimes you may have some wooden sheeting, something laid on the tank top. Mostly nowadays, what you see your tank tops, they are basically absolutely bare, steel. But sometimes general cargo ships, they used to have something, what we call the wooden sheeting. Some sort of wood was already fixed into or on top of the tank top. Now if I want to measure the space, the capacity which is given to you, now there are two things. If I am going to load general cargo, which can be boxes, cases, pipes, now those cases and all, they cannot go inside these frames. So you see this, the space inside these frames, of course, gets wasted. But if I have to load, say, bulk cargo, then of course bulk cargo can go right up to the ship side. Now if you want to load general cargo, so first thing comes what we call, if I take the dimensions
from inside these frames. So if the length, breadth and height of the hold, here also you have underdeck beams where I cannot load cargo. So similarly, if something is fitted on the tank top, this space is also gone. Normally, if we take the length, breadth and height inside all these structure, inside these frames, inside these stiffeners, like forward and aft bulkhead, they have stiffeners. So that capacity is known as the bale capacity. Bale capacity. Now this bale capacity is again calculated when the ship is built. It is given to you in the plans that what is the bale capacity of number 1, number 2, number 3. All the holds have different sizes. So this capacity is given to you. And second case, if I have to load bulk cargo, then I know if I pour the bulk cargo, it will go even inside this frames also. And in that case, they take the dimensions right from ship side. But some amount of space is taken by these frames. So they calculate that space which is taken by the frames. And they subtract from the total entire cubic capacity. If I minus all the space, so what we get a grain capacity. So which capacity will be more? Grain capacity of the hold will be more, or the bale capacity of the hold will be more? Grain capacity, sir. Good. Very good. So grain capacity will be definitely more because I can store cargo right up to the ship side, but that is only in case of bulk cargo. Now just imagine yourself, you are sitting in a room, you may have some columns, some beams, isn't it? And if you have to store some luggage, suitcases, bags, tables, chairs, bed, so naturally your room space, your room capacity decreases because of these pillars and columns. So same way on the ship, we have these things. So this concept should be very clear, that what is bale capacity and what is grain capacity. Now you can make a rough sketch, show it, and then you can define very easy that bale capacity is the cubic capacity of a hold when the length, breadth and height is taken inside the frames, stiffeners or wooden sheeting if something is fitted on your tank top. Otherwise, right from the tank top to underdeck, right below the underdeck beams. And similarly, grain capacity is the cubic capacity of a cargo hold when the length, breadth and height is taken right up to the ship side, and an allowance for all these structural fittings is deducted from that space. So we get the grain capacity. Now you know the capacity of your hold, very good. All the holds you know how many cubic meters they measure, and from there I can estimate. Now how to estimate how much cargo I can load into this hold. Now this is the most important job, that if I have to come to know that how much cargo I can load. Hello, sir. Yeah, go ahead. Sir, Yeah, Jitendra, your voice is coming broken. Cannot hear you. Say again. थोड़ा slowly बोलो. सर, सर जो ऑयल टैंकर होता है वो ग्रेन कैपेसिटी है या बेल कैपेसिटी है सर?
Yeah, tanker की जो capacity है that is different. That is straightway the cubic capacity. There they give you the cubic capacity. There they don't give you bale because we are not going to load general cargo in the oil tanker. There we are going to load the liquid, isn't it? So Yes, sir. You must have handled ballast tanks. Ballasting deballasting की होगी. बट मेरा क्वेश्चन था सर कि जो आपने अभी बोला कि कैपेसिटी ऑफ द होल्ड, Yes. तो वो भी तो होल्ड ही है ना सर? Yeah, that is not called a hold, that is called a tank. So in case of a tank where we are going to load liquid, so that was the capacity of a tank is given in cubic meters. Okay. ओके सर. सर कभी ऐसा भी होता है ग्रेन कैपेसिटी एंड बेल कैपेसिटी आर इक्वल? Can you imagine? Can it be same? आप ही बताइए. Can the grain capacity and bale capacity be same? मैंने आपको एग्जांपल दिया आपका रूम का. Same way you have the fittings here. You got the frames on the ship side, stiffeners, forward and aft bulkhead. And now I am going to load the cargo which is in boxes, crates, pipes. Can I load cargo right up to the ship side? Yes, sir. बताइए. Can we load the boxes up to the ship side because रास्ते में आपके frame आएंगे. Can you go load the box inside the frame? No, sir. Simple. So bale capacity, grain capacity will always be different. So grain capacity will be more, and bale capacity will be where I can load the packaged goods. Okay. अब आपका next आ गया. सर डनेज का कोई पार्ट है इसमें? हाँ जी. डनेज का कुछ पार्ट होगा इसमें, मतलब ग्रेन कैपेसिटी माइनस ये जो टेंशंस है और उसके बाद माइनस डनेज उसको इक्वल टू बेल कैपेसिटी, राइट? Yeah, if they give you that, okay, I'm going to lay dunnage on the tank top down below. The dunnage is lowered, say up to 5 centimeter. If he knows the thickness of the dunnage, that 5 centimeter dunnage is laid. Okay, and on the ship side we have what we call the frames, and then on top of frames you have fitted these side battens, isn't it? So that means he gives you the, it's possible they can give you that the side battens are extending say maybe 10 centimeter, dunnage is laid 5 centimeter, and then he gives you the whole dimensions 30 by 20 by 10. So now these dimensions are right from ship side to ship side, and then you can subtract the space which is occupied by the dunnage. So we can dunnage would be reduced by both of the things, right? Bale capacity and grain capacity both, right? Yeah, normally बच्चे in the grain capacity you will not find dunnage because bulk cargo you don't lay dunnage. So dunnage वाला question आपको आएगा in case you are loading machinery cases, you are loading bagged cargo or anything else, then he will tell you okay, the dunnage is laid and you have the side battens. There he gives you that the side battens, because the side battens are totally blocking this much space they are taking. So then he gives you the side battens and the dunnage, they are occupying 5 centimeter, 10 centimeter on the sides. So we can subtract this much space from the total capacity. Then we come to know how much is the loadable capacity, isn't it? सर साइड बैटन्स पूरे कवर्ड होते हैं क्या, या फिर कोई? Yeah. Side battens are normally, as I showed you, when we are doing initially, the side battens are only on the ship side, not on the forward and aft bulkhead. Forward and aft bulkhead normally you have the stiffeners. So on the ship side they give you in the frames. In the frames you have the hooks. Like we have these frames. If you see, इसके ऊपर उन्होंने hooks होती हैं, and इसके अंदर वो planks डाल देते हैं, जिसको आप निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो इनके अंदर, like this, but they are right completely blocking, so that like example your bagged cargo or something like that, they do not go and touch the ship side. And also हमने पढ़ा था डनेज का और इसका साइड बैटन की एडवांटेज कि there is a space for the air to flow, isn't it? अगर मैं कार्गो को पूरा, suppose if I am loading bagged cargo, so if I store this bagged cargo
right up to the ship side, तो क्या होगा? How will you ventilate the cargo? Isn't it? अगर इसी कार्गो को मैं सपोज यहाँ से मैंने यहाँ पे साइड बैटन लगाए हैं, now the air can circulate. सर तो ये वही तो केस हो गया जो लड़का पूछ रहा था, बेल कैपेसिटी और ग्रीन कैपेसिटी बराबर तो हो गई है, क्योंकि अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं पूरा ट्राइंग वो कोनस। See, bale capacity and this thing is given separately to you. It is already calculated and given. अब क्वेश्चन में वो आपको बोल देता है कि yes, your ship side, your whole dimensions are so much. Now these whole dimensions are right up to the ship side, right to the extremities, without deducting anything. Now this is given in the question. On the ship, it is normally given as the bale capacity so much calculated by the yard. So sir, that dimension is full capacity of the hold. Yes, that is a full means up So to the that ship. is grain, sir. Again, grain capacity will not be this full capacity 30 by 20 by 10. Suppose मेरा hold है, if this is my hold and I measure like this, now this is the total capacity. अब इसके अंदर फ्रेम भी तो लगे हुए हैं. When we are loading grain capacity, जब वो आपको दे रहा है, तो each frame has got some space occupying. It is not covered with the wooden dunnage. सर ऐसे भी टैंक है सर जिसके अंदर ही फ्रेम नहीं होता, फ्रेम तो बाहर होता है, तो Again, उस कंडीशन में सेम हो सकता है ग्रेन और बेल। Of course, अगर आपका you have the tank और you have the hold जिसके अंदर कोई भी स्टिफनिंग नहीं है, सर नाउडेज जो नए टैंकर जो नए जो बल्क कैरियर आ रहे हैं उनके फ्रेम आउटसाइड है ना सर टैंक में। correct. So if it is a उस double, कंडीशन में हो जाएगी। then again it depends type of ship to ship. अगर ये आपकी फ्रेम जो है सारे इनसाइड है, यहाँ पे अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, then of course the capacity will be same, which is the extremities. फिर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अरे सर मैं बोलूं? But it is not possible. सर तो बोल What about these under deck beams? यहाँ पे तो डबल स्किन नहीं है ना? यस सर, डबल स्किन तो उसने साइड को कर दिया सर. फॉरवर्ड एंड आफ्ट जो बल्कहेड है उसके ऊपर तो स्टिफनर लगे होंगे. यस सर। तो जो भी स्टिफनर है, चाहे वो 0.5 क्यूबिक मीटर या 0.2 क्यूबिक मीटर, ईच स्टिफनर इज टेकिंग स्पेस एंड आई गॉट 100 स्टिफनर्स, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय द स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन स्टिफनर. सर मैं एक चीज बोलूं? हाँ बोलो. सर ये आपका कहने का मतलब यही है ना, जो एक्सट्रीमली लेंथ एंड एक्सट्रीमली ब्रेथ, यानी कि अगर सपोज हमारा राइस है, हमने राइस की बोरी डाल दी या राइस को खुला करके डाल दिया, राइस को खुला करके डाल दिया तो वो छोटी छोटी स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एक्सट्रीमली लेंथ ऑक्यूपाई कर लेगा, इट मींस कि इट्स अ बेल कैपेसिटी। अगर हमने राइस की बोरियां डाल दी, तो बीच में स्पेस लॉस्ट होगा, जो कि हमारा ब्रोकन स्पेस कुछ भी बोलते हैं उसमें मैं भूल गया, बट बीच में गैप हो जाएगा, तो वो हमारा बेल ग्रेन कैपेसिटी होगा। उल्टा तुम उल्टा बोल रहे हो? उल्टा बोल रहे हो, वो बेल का. हाँ। अब यही चीज हमने यहाँ पे ली है कि सपोज अब आप कहते हो कि मैंने बैग्स लोड करने हैं, अब मेरे यहाँ पे फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर मैंने साइड बैटन्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तब मेरी स्पेस कम होगी. अब वो शिपयार्ड आपको पहले ही कैलकुलेट करके देगा कि हाँ जी बेल कैपेसिटी मींस आपका जो बैग्स हैं जो इसके अंदर नहीं जा सकते उसकी कैपेसिटी इतनी है. हो सकता है ये इसको टोटल करो, ये आ गई 6000, तो बेल कैपेसिटी हो सकता है ही मे गिव यू इट इज 5500 एंड ग्रेन कैपेसिटी मे बी 5800, टोटल वॉल्यूम इज 6000. तो हमें नहीं कैलकुलेट करना, दिस इज गिवन टू यू, तो यू शुड नो कैपेसिटी प्लान में कि बेल कितनी है. नाउ अगर द कार्गो इज ऑफर्ड टू यू, व्हाटएवर कार्गो इज ऑफर्ड टू यू, if the cargo is a general cargo, then I will take immediately you go to the bale capacity which will be given in your question. अब आपको कार्गो तो दे दिया उसने, बॉक्सेस, मशीनरी केसेस, एंड आपने ले ली ये वाली कैपेसिटी 6000, तो गलत हो जाएगा, समझे? सर एक जनरल क्वेश्चन था
ये डनेज के पैसे भी लेते हैं क्या वेसल में? हाँ जी, डनेज के पैसे भी लेते हैं क्या सर? मतलब कार्गो टनेज के क्या लेते हैं? मतलब चार्ज लेते हैं क्या डनेज का अलग से, मतलब कार्गो के साथ जोड़ के? ऑफ कोर्स बच्चे, डनेज द शिप हैज टू प्रोवाइड। अगर आपने शिपर जो है वो अपना कार्गो देता है तो इट इज द शिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द डनेज एंड टू सेफली स्टोर द कार्गो, सो दैट इज द शिप्स एक्सपेंसेस। कार्गो वाला नहीं देगा आपको, कार्गो वाला सिर्फ कार्गो देगा, सो आई हैव टू स्टोर। तो वो सारा का सारा क्या कितने पैसे लेते हैं दैट डिपेंड्स अप टू द शिप ओनर। ओके, ये आपकी हो गई कि चलो जहां तक कैपेसिटीज कंसर्न थी। अब आप क्या, नाउ यू हैव टू लोड द कार्गो। अब कार्गो को लोड करने के लिए हमें देयर इज समथिंग कॉल्ड, सबसे पहले फर्स्ट इज द स्टोरेज फैक्टर। व्हाट इज स्टोरेज फैक्टर? कि अगर मेरे को इस कार्गो होल्ड में कार्गो लोड करना है, सो आई मस्ट नो द कार्गो विच इज ऑफर्ड टू मी, इट इज ऑक्यूपाइंग हाउ मच स्पेस। नाउ इस चीज को बताने के लिए दैट दिस कार्गो ऑक्यूपाइज हाउ मच स्पेस, there is something called storage factor. It is simply, the storage factor is the volume occupied by a unit weight of cargo. Means the space or the volume occupied by 1 ton of cargo is basically known as the storage factor. So storage factor, volume occupied by 1 ton of cargo or unit weight of cargo. Now if this is known to me, I can very easily calculate how much cargo I can store in this much space. I can calculate how many tons this space will. सर ये डिपेंड करेगा ना नेचर ऑफ कार्गो के ऊपर। Of course. हो सकता है वो ग्रेन हो सकता है ये बैगेज हो, तो उसमें हम बेल कैपेसिटी या ग्रेन कैपेसिटी उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। Correct. If he tells you that you are loading bulk cargo, so immediately I will take the grain capacity. If he gives you that you are going to load the packaged goods, the boxes, crates, bagged cargo, example bagged cargo, then immediately आपके मन में आना चाहिए कि now the bale capacity is effective. अब कई बार वो कहता है कि मैंने इसमें बल्क कार्गो डिस्चार्ज किया है और इस बल्क कार्गो में से मैं 100 टन निकाल के उसको बैग्स में भर के लोड करता हूँ। अब जब बल्क कार्गो लोड किया था तो आई वाज हैंडलिंग ग्रेन कैपेसिटी। अब जब इसके ऊपर बैग्ड कार्गो डाल दिया तो उसके लिए कैपेसिटी जो है ग्रेन कैपेसिटी यूज करूंगा। एंड स्टोरेज फैक्टर अगेन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कार्गो, isn't it? So normally it is expressed as meter cube per ton. 1 meter cube, 2 meter cube, half a meter cube. So high density cargos, they occupy less space. So they can be maybe 0.3 meter cube per ton. Whereas cases, machinery cases and anything else can be 2.5 meter cube per ton. So from storage factor you can make out how heavy the cargo is or how light the cargo is. If the cargo is light cotton, it will occupy 1 ton of cargo will occupy a lot of space. मेरा होल्ड जो है भर जाएगा, उसमें हार्डली एनी वेट विल बी देयर. सेम टाइम इफ आई एम लोडिंग steel plates or steel billets which are very heavy, steel slabs, they will occupy only very little space, but they are very heavy. आपकी स्पेस खाली रह जाएगी एंड लिमिट खत्म हो जाएगी. So storage factor gives me, if I want to calculate here, if I have a space of say 5,500 or example, say I have a bale capacity of 6,000 meter cube, bale capacity of 6,000 meter cube, and if you know the storage factor is say 0.5. Bale capacity is say 4,000 and storage factor is given to be 0.5 meter cube per ton. How many tons of cargo you can load in this space?
How much quantity can be loaded? 2000 tons. 8,000. 2000 tons. Total capacity 8000 tons. 8,000 sir. ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, रट के नहीं करना, जस्ट थिंक योर टाइम, पीसफुली सोचिए कि हाँ यार मेरे को क्या दिया कि कैपेसिटी है उसकी 4000 मीटर क्यूब, एंड यहाँ पे वो कहता है 0.5 मीटर क्यूब is occupied by 1 ton. 1 meter cube will be occupied by 1 upon 0.5, and हमारे पास कितने हैं 4000 मीटर क्यूब will be occupied by 4000. आपको ये नहीं रटना कि अच्छा क्वांटिटी पूछिए तो इसको डिवाइड, आपके पास डू योर बेसिक यार. 0.5 उसने स्टोरेज फैक्टर किया 0.5 मीटर क्यूब पर टन, दैट मीन्स 0.5 मीटर क्यूब is occupied by 1 ton. 1 meter cube 1 upon 0.5 4000 into this. अब आप इसको कैलकुलेटर की बजाय अपने आप मैनुअली कीजिए कि हाँ यार ये कितना आएगा. ओके ओके सर. सर इसकी वो टन्स होगी यूनिट. या टन्स, टी लिखा ना टन्स. इसका अपोजिट भी हो सकता है. अब इसका अपोजिट क्या होगा कि आपके पास बेल कैपेसिटी है, उसने स्टोरेज फैक्टर आपको दे दिया ओके से 2 मीटर क्यूब पर टन, and he wants to load. Okay, calculate that how much space required for 1000 tons of cargo. Space required for 1000 tons of cargo, जिस कार्गो का स्टोरेज फैक्टर 2 मीटर क्यूब पर टन है, तो उसको कितनी स्पेस चाहिए होगी? कार्गो का 2000 मीटर क्यूब. हाँ जी 2000 मीटर क्यूब. 2000 मीटर क्यूब. ठीक है, अब आपने कैसे निकाला कि आप यहीं से जाते हो स्टोरेज फैक्टर से? यस सर. 1 ton occupies 2 meter cube, isn't it? And 1000 will occupy 2 into 1000. 2000 मीटर क्यूब की मेरे को स्पेस चाहिए. मेरे कार्गो होल्ड में स्पेस है 4000 मीटर क्यूब. दैट मीन्स ये वाला जो कार्गो है, गाय भैंस घोड़ा जो भी है, दैट विल ऑक्यूपाई, यहाँ तक ये कार्गो आ जाएगा. दिस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय से मशीनरी केसेस. 2000 मीटर क्यूब आपका खत्म हो गया. अब बैलेंस कितना बचा? टोटल थी आपके पास 4000, तो यहाँ पे 2000 मीटर क्यूब और स्पेस बच गई. अब मैं इसमें दूसरा कार्गो प्लान कर सकता हूँ. आई होप क्लियर यहाँ तक. सर अगर क्वेश्चन में दोनों कैपेसिटी दे रखी हो, बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी, और स्टोरेज फैक्टर दे रखा हो, और पूछता हो कि अब बताओ कि कितने टन्स ऑफ कार्गो कैन बी लोडेड, फिर कौन से देंगे सर? या इन केस ही सेज कि भाई कितना टन है, अब या तो मेंशन करेगा कि हाउ मेनी टन्स ऑफ बल्क कार्गो यू कैन लोड और हाउ मेनी टन्स ऑफ बैग्ड कार्गो यू कैन लोड. अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप दोनों को लिख दीजिए कि यस द बैग्ड कार्गो so many tons and bulk में if I have to load in bulk so many tons. ओके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये है कि यस यू नो. आपने जो क्वेश्चन पूछा वेरी गुड कि इन केस समबडी आस्क यू कि ओके आपकी शिप की होल्ड की कैपेसिटी 5500 और चलो इसको हम इजी रेफरेंस के लिए 4000 एंड 5000 कर देते हैं, जो भी उसने कैपेसिटी दी है, हाउ मच कार्गो. यू कैन आस्क ओके व्हिच कार्गो यू आर प्लानिंग टू लोड. Are you giving me in bulk or are you giving me same rice? Example, take rice. Are you giving rice in bulk or rice in bags? Then you can calculate. Okay, company is asking you, sir. Okay, in this hold, I can load 2000 meter cube or
2000 tons or 1000 ton and 1000 ton space. So it is basically a relation between your volume and the tonnage. सर इसके टाइप का एक ना क्वेश्चन करा दीजिए सर प्लीज, वो वाला आपने लास्ट में जो बोला है ना उसके टाइप का एक क्वेश्चन समझा दीजिए तो समझ में आ जाएगा सर। टोटल कैपेसिटी में से बेल और ग्रेन अलग अलग। बंदे ने पूछा था सर, एक बंदे ने पूछा था कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी दोनों दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना अभी, तो उसमें सर ग्रेन कैपेसिटी को बेल कैपेसिटी में कन्वर्ट करते थे ना? नो सी क्वेश्चन था इस एज की, मेरे को उन्होंने पूछा स्टोरेज फैक्टर दिया है, यस सर, एंड हाउ मच कार्गो यू कैन लोड। यस सर। अब कार्गो लोड करने से पहले तो शिप तो पूछेगा ना कंपनी को भी विच कार्गो यू आर प्लानिंग टू लोड। यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं कि बल्क कैरियर्स की, बल्क कैरियर में वी लोड बल्क कार्गो आल्सो एंड वी लोड स्टील आल्सो। यस सर। So they will give you, even in the question they will give you this is the cargo like steel coils, steel Yes, plate, sir. उसका स्टोरेज फैक्टर देता है। सो इफ आई नो द मोमेंट ही सेज कि ओके स्टील कॉइल्स, देन आई नो स्टील कॉइल के लिए बेल कैपेसिटी एप्लीकेबल है, स्टील कॉइल तो फ्रेम के अंदर नहीं जाएगी। Yes, sir. खत्म, सिंपल कि सर ओके सो मेनी टन्स ऑफ स्टील कॉइल आई कैन लोड। इफ ही सेज यू आर गोइंग टू लोड ग्रेन, मतलब जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो कि अगर शिप का जो होल्ड है उसकी आपकी बेल कैपेसिटी भी दे रखी है और ग्रेन कैपेसिटी भी दे रखी है, उसका स्टोरेज फैक्टर भी दे रखा है, तो वो हमें एज्यूम करना होगा कि वो हम बेल कैपेसिटी ले या ग्रेन कैपेसिटी ले। यस, नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता, आपके क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, दे विल गिव यू। पास्ट ईयर्स में आया था, मतलब 2018 में आया था एक क्वेश्चन बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी के ऊपर, सेम क्वेश्चन, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें बेल कैपेसिटी को ग्रेन कैपेसिटी को बेल कैपेसिटी में कन्वर्ट करवाया था। Okay, I will come to that. We will do that type of question also. अभी करते हैं उसको, ठीक है। पहले थोड़ी चीजें समझ लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर, कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज फैक्टर क्या है, क्लियर? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने यहाँ पे कार्गो लोड किया और लोड कर रहे हो। अब बाय वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ कार्गो, सपोज यू आर लोडिंग मशीनरी केसेस। अब जब मैं इन मशीनरी केसेस को लोड करता हूँ, हो सकता है सम ऑफ द मशीनरी केसेस उसके जो साइज है, उसका जो डायमेंशंस हैं वो कुछ ऐसे है। अब मशीनरी के सारे तो स्क्वायर अप नहीं होंगे, so there is some space wasted, isn't it? So by virtue of the size or the nature of the cargo, there is a possibility कि अब ये तो है नहीं कि my hold is of course square, hold भी थोड़ा absolutely square नहीं हो सकता, आगे के hold कुछ भी हैं, plus the nature of cargo is such that it may not occupy right up to the ship side, कहीं ना कहीं बीच में space waste होती। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं बैग लोड कर रहा हूँ, बैग कार्गो, तो जब हम बैग कार्गो लोड करते हैं, एक के ऊपर दूसरा बैग आएगा, सो देयर इज सम स्पेस गेटिंग वेस्टेड, इजंट इट? अब आपने तो स्टोरेज फैक्टर दे दिया कि ओके द कार्गो इज स्टोइंग एट से 1 मीटर क्यूब पर टन। अब उस हिसाब से अगर मैंने अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली कि ओके आई कैन लोड सो मेनी टन्स, पर जब हम लोड करने को आए तो ये खाली स्पेस तो वेस्ट हो गई। नेचुरली आई विल बी एबल टू लोड लेस। कार्गो तो आपने बुक कर दिया, जब लोडिंग करने आए तो होल्ड भर गया, बिकॉज ये स्पेस तो हमने टेक इनटू अकाउंट की नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज की सेफ्टी के लिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रोकन स्टोरेज। Now what is broken storage? Simple. The space So which void space between the cargo. Spots between the cargo. yes, the space which remains unfilled due to the shape of the cargo, due to the nature of cargo, and that space. Now how to calculate this broken storage? Now please remember that broken storage is always the percentage of the cargo, not the percentage of the cargo hold. So it is normally given like say 10% is the broken storage.
Now when he says 10% or 8% or 5% or whatever percentage, he gives you the broken storage is so many percentage of the, basically it is of the cargo. So that means ये स्टोरेज फैक्टर को अप्लाई करेगी. सपोज मेरा स्टोरेज फैक्टर उसने दे दिया, इट इज स्टोरेज फैक्टर इज 2 मीटर क्यूब पर टन एंड ब्रोकन स्टोरेज इज 10%. अब जब मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल एड अप दिस ब्रोकन स्टोरेज इनटू द स्टोरेज फैक्टर. कैसे कि इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर टन प्लस 10% ऑफ 2 इंटू 10/100 इसका 10%. तो कितना आ गया 2.2 मीटर क्यूब पर टन. तो आपका एक्चुअल स्टोरेज फैक्टर जो है वो 2.2 मीटर क्यूब पर टन है. अब मैं इससे जब अपनी स्पेस को डिवाइड करता हूं, अब आपका सर इसमें तो माइनस करना चाहिए ना सर, ब्रोकन स्टोरेज तो लॉस ऑफ स्पेस है ना सर, तो स्टोरेज फैक्टर में अगर उसको जोड़ देंगे तो और ऐड कर लिया ना सर हमने उसको. जितेंद्र, ये मैंने स्पेस, इतनी स्पेस ये कार्गो ले रहा है, मेरे को उन्होंने दिया है कि ये जो कार्गो है इट इज ऑक्यूपाइंग, उसका स्टोरेज फैक्टर उसने दे दिया 2 मीटर क्यूब पर टन. एंड इस कार्गो ने अपनी स्पेस तो ली प्लस ये जो खाली स्पेस थी, अगर मैं उसको माइनस कर देंगे तो सर तो एक्चुअल वो आ जाएगा ना हमारे पास कि हमने कितना वेट लोड कर सकते हैं. अगर इसको ब्रोकन स्टोरेज को माइनस कर देंगे सर, जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, तो उसका एक्चुअल वेट वो आ जाएगी ना सर, वेट आ जाएगा ना कि कितना कार्गो लोड कर सकते हैं. बच्चे सुनिए ना, आपने ये कार्गो लोड किया यहाँ पे, इसकी स्पेस उसने बता दिया. जैसे मैं ये बैग दिखाए हैं, सपोज दीज बैग्स आर ऑक्यूपाइंग 10 मीटर क्यूब. यस सर. और ये जो बीच में खाली स्पेस है, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने इसको मेजर किया, दिस इज 2 मीटर क्यूब. सर वो तो परसेंटेज में आता है ना सर, है परसेंटेज में आएगी ना, 2%, 3%. अरे परसेंटेज से ही, एग्जांपल के लिए परसेंटेज से ही कैलकुलेट कर लिया. ओके 10% इसके बीच में स्पेस कैलकुलेट खत्म किया. सो 10 मीटर क्यूब मैंने टोटल स्पेस यूज की थी, उसका 10% जो है वो खाली स्पेस रह गई. तो कार्गो ने टोटल स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की, 10 मीटर क्यूब की या 10 मीटर क्यूब प्लस 10%? सर 10 मीटर क्यूब प्लस 10%. सिंपल. अरे जितेंद्र वो पूछ रहा है कि कार्गो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसमें तो वो भी आएगा ना ब्रोकन स्टोरेज. वेस्ट हुई है वो भी तो उसी कार्गो में आएगी ना, कि आपने तो वो बस ये पूछना वो ये नहीं पूछ रही कि कितना कार्गो लॉस्ट करा उन्होंने, कितना स्पेस लॉस्ट करा उन्होंने, ये पूछा है कि कितना कार्गो ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ऑक्यूपाई में तो ब्रोकन स्टोरेज भी आ जाएगा. ओके गॉट इट, थैंक यू. चलो गुड, क्लियर किया, डाउट क्लियर कीजिए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब नहीं भूलेगा. अब आपको समझ आएगी हाँ यार ब्रोकन स्टोरेज क्या है, कि जो मेरे को आदमी कार्गो दे रहा है, जो शिपर कार्गो दे रहा है, वो तो बता रहा है कि भाई मेरा कार्गो जो है वो इस रेट से लोड होता है 2 मीटर क्यूब टन से. बट जब मैं अपने होल्ड में उसको लोड करने आया तो बीच में स्पेस बच जाती, वो तो उसने मेरे को इसमें दी नहीं. यस सर, वो ऐड हो जाएगी नेचुरली. तो फिर हम उसको पूछते हैं कि भाई ये जो बैग्ड कार्गो है इसकी ब्रोकन स्टोरेज कितनी है. फिर वो कहता है हाँ भी 10% ले लीजिए. तो फिर ठीक है, तो मैं 10% यहीं पे ऐड कर देता हूँ स्टोरेज फैक्टर में. मेरा इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर 2.2 आ गया. अब इससे मैं स्पेस को डिवाइड करता हूँ, मेरे पास टन्स आ जाएंगे. कम आएंगे ना, स्पेस गई है तो कम आएंगे. ये स्पेस अगर मैं नहीं लेता तो मैं ज्यादा कार्गो लोड कर सकता. ओके सर, चलो गुड. थैंक यू. आप लोग इंटेलिजेंट है, पकड़ लेते, जल्दी समझ जाते. चलो नेक्स्ट. अब ये जो मेरा कार्गो होल्ड है, अब आपने तो कैलकुलेट कर लिया, ये स्टोरेज फैक्टर मेरे को दिया था, सब कुछ दिया हुआ है, तो मैंने यहां से कैलकुलेट किया. एंड एग्जांपल स्टील लोडिंग हो रही. अब स्टील का वो कहता है ये था, इसकी डायमेंशन दे दी 30/20/10 एंड स्टोरेज फैक्टर उसने मेरे को दे दिया 0.5 मीटर क्यूब पर टन. कंपनी आपको पूछती है
हाउ मच कार्गो यू कैन मूव। तो आपने स्ट्रेट वे वॉल्यूम को डिवाइड किया स्टोरेज फैक्टर से और आपने बता दिया कि 6000 स्पेस है, इजी 12,000 टन कार्गो में ले सकता हूँ, पूरी स्पेस 12,000 की। अब अगर मैं इस होल्ड में 12,000 टन कार्गो भर दूं तो हर स्टील की हर चीज की स्ट्रेंथ होती है, इजंट इट? तो ये जो प्लेटिंग है, अब जिसने ये जहाज बनाया है उसने भी इसको कैलकुलेट किया है कि ये 10 mm प्लेट है या 12 mm है या 8 mm है। तो ये जो प्लेटिंग है इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये अपने ऊपर कितना लोड ले सकती है। एग्जाम्पल आपका मकान है, अब उसके ऊपर जो स्लैब पड़ा होता है, तो सिविल इंजीनियर उसको कैलकुलेट करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कि भाई ये इसके ऊपर इतने ही फ्लोर बना सकते हो आप। यस सर। इजंट इट? ये तो है नहीं कि हमने नीचे से उसकी फाउंडेशन डाली, उसके ऊपर 10 मंजिल बनाते चले गए, तो गिर जाएगी बिल्डिंग। इसी तरह से बिल्डिंग बनाने से पहले या शिप बनाने से पहले एवरी स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड कि ये जो मेरा टैंक टॉप है, होल्ड का जो टैंक टॉप है, ये कितनी स्ट्रेंथ ले सकता है। So that is given in the ship's, I mean, प्लान्स, that loading plan, sir. या नॉट लोडिंग प्लान, और दूसरी प्लान है, कैपेसिटी प्लान दूसरे में होगा, तो उसे हम कहते हैं लो डेंसिटी। बेसिकली इट इज, व्हाट इज लो डेंसिटी? इट इज अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, कि भाई इसकी कैपेसिटी जो है इतनी है, अगर आपने इससे ज्यादा लोड किया तो ये प्लेट बेंड हो जाएगी, टूट भी सकती है। तो एज ऑफिसर सबसे पहले मेरे मन में आएगा, हाँ यार आई हैव टू लिमिट, भाई जितना मेरे को नेवल आर्क ने, शिपयार्ड ने इसकी लिमिट बताई है, अभी इसके अंदर इतना ही कार्गो लोड करना है, तो वो भी मेरे को ध्यान में रखना है, चाहे मेरे पास स्पेस है। तो ये जो लोड डेंसिटी है, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कार्गो, इट इज गिवन इन पर स्क्वायर मीटर, कि 1 स्क्वायर मीटर में आप कितना टन कार्गो लोड कर सकते हो। इट इज गिवन एज दैट पर स्क्वायर मीटर, और से 10 टन पर स्क्वायर मीटर। अब मेरे लिए आसान हो जाता है कि यार मैंने देखा मेरी डायमेंशन है 30 बाय 20, 30 मीटर का होल्ड की लंबाई है, 20 मीटर उसकी चौड़ाई है, एंड लोड डेंसिटी 10 है। सो आई कैन कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ कार्गो, मैं इस होल्ड के अंदर कितना डाल सकता हूँ। दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू व्हाट वी कॉल द परमिसिबल लोड डेंसिटी, कि दिस मच इज परमिटेड, इससे ज्यादा परमिटेड नहीं है। क्यों? इससे ज्यादा आपने डाला तो ये प्लेटिंग आपकी बेंड हो जाएगी। ये क्या होल्ड, एंड हमारी टिकट आ जाएगी नहीं फर्स्ट क्लास की। बेसिकली जो अपना स्टोरेज फैक्टर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा। Storage factor is inversely proportional to your storage Density. factor is inversely proportional to the density, not the load density. Yes sir, density. Yeah, load density is just the structural strength. How many tons per square meter के हिसाब से वो देता है। तो मेरे पास कितने स्क्वायर मीटर है यहाँ पे, लेंथ ब्रेड्थ मैंने मेरे पास है, तो I can calculate 30 into 20 into 10 that I can load 6,000 tons of maximum cargo and not 12,000 ton, जो मैंने स्टोरेज फैक्टर और क्यूबिक कैपेसिटी से कैलकुलेट किया था। अब हो सकता है आपका कार्गो जो है, तो आपने सर वॉल्यूम कैलकुलेट करी ना, तो उसमें टन्स में थोड़ी आएगा, मैट्रिक क्यूब में आएगा ना, फिर तो वो मीटर में दे रखा है। he is given 10 tons per square meter. Yes sir. 1 square meter can take only 10 tons. 1 square meter तो आपने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू परमिसिबल डेप्थ लिखी थी ना, तो वो टन्स में कैसे आ जाएगी? वो तो मैट्रिक क्यूब में आएगी ना। अच्छा, उसको मैंने आप मिक्सअप कर रहे हो। मैंने पहले कहा था कि आप इसको भूल जाइए, अगर आपको ये नहीं है तब हम क्या लोड कर रहे थे कि आपके पास क्योंकि ये बेल कैपेसिटी है इतनी दी हुई है, आपको कार्गो दिया जाता है, आप इसी से कैलकुलेट करते हो, तो आपने निकाल लिया आई कैन लोड 12,000 टन। सर वो 10 का 5 कर दो, समझ में आ जाएगा।
हाँ जी, ओके। सर उसके साथ ना यूनिट भी लगा दो, वो कैंसिल हो जाएंगी, वो दिख जाएगा भाई, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं ना उसके साथ यूनिट्स भी लगा दो सर। ये लगाया ना 12,000 टन। सर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। अभी आपने बताया था ना कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू परमिसिबल डेप्थ जब आपने निकाली थी, तो जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है और ब्रेथ होती है वो भी मीटर में होती है। तो ये जो आपने 6,000 टन लिखा है ना, तो मैं इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जब आपने बोला था कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू परमिसिबल डेप्थ, Permissible density. It is not permissible depth. It is the permissible. It is the load density. 10 मीटर क्यूब ये दी है। यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया, अब समझ गया। सर वो एरिया है ना एक्चुअल में, तो ऊपर मीटर क्यों आएगा, नीचे मीटर क्यों आएगा, कैंसिल हो जाएगा, टन्स बचेगा बस। हाँ हाँ, वो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो मुझे लगा डेप्थ है वो 10th, मैंने वो नहीं पढ़ा था, सॉरी सर, मेरी मिस्टेक थी। चलो क्लियर। तो यस सर, अब क्लियर। आपका कार्गो जब आपने लोड करना है तो आपको पता लग गया कि भैया मेरे को सिर्फ स्पेस भी नहीं देखनी, मेरे को ये भी देखना है कि चाहे वो मेरे को हाई डेंसिटी कार्गो दे देता है, स्टील दे देता है, विच इज हाई डेंसिटी कार्गो। हाई डेंसिटी कार्गो क्या होता है? द कार्गो विच ऑक्युपाइज वेरी लेस स्पेस बट उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। लाइट कार्गो क्या होता है? अब इसी में मैंने अभी आपने, चलो हमने ये स्टील हाई डेंसिटी कार्गो था, इस स्टोरेज फैक्टर से लोड हो रहा था। As per the storage factor, I can load 12,000 tons, but as per load density, I can only load 6,000 tons. So I will restrict to 6,000. भैया 6,000 से ज्यादा नहीं मैं लोड करूंगा, so I can load only 6,000 टन। मैंने कैलकुलेट किया, ये स्पेस आपकी वेस्ट की। अच्छा सर एक बात पूछनी थी सर। सर लाइक लोड डेंसिटी दी हुई है और सॉरी स्टोरेज फैक्टर भी दिया हुआ है और लोड डेंसिटी भी दी हुई है सेम क्वेश्चन में, तो अपना स्टोरेज फैक्टर का तो कोई रोल नहीं रह गया सर, क्योंकि जो हम परमिसिबल लोड डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं मैक्सिमम पर स्क्वायर मीटर में, सॉरी स्क्वायर मीटर ही है ना, उसमें कितना लोड कर सकते हैं। ओके, वो तो आ गया आपके पास, लिमिट आ गई। तो स्टोरेज फैक्टर का कोई रोल ही नहीं रह गया सर वहां पे फिर। क्या तो है ना, अभी आप समझिए ना इसको, क्वेश्चन में देखते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है, किसका फायदा है किसका फायदा नहीं है। बट हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि भाई कार्गो का स्टोरेज फैक्टर तो हमें चाहिए ही चाहिए, एंड हमें अपने शिप की कैपेसिटी भी चाहिए और उसकी स्ट्रक्चरल लिमिट भी चाहिए, लोड डेंसिटी भी चाहिए कि यार मैं कितना कार्गो इस होल्ड में डाल सकता हूँ। ये नहीं कि स्पेस देखते हुए भरते गए और नीचे टैंक टॉप तोड़ दिए। ओके सर, इजंट इट? तो सारी Okay. इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तभी प्लानिंग होगी ना। यस सर। तो इसलिए हमने ये सारा करना है। अब आपके पास तो दूसरा कार्गो दे देता है कि भाई जिसका स्टोरेज फैक्टर 2.5 है। अब हो सकता है वो कॉटन बेल्स है, आप उसको पूरा भर दीजिए, यहाँ तक भर दीजिए। कॉटन बेल्स है कि आप पूरी स्पेस भर सकते हैं, फिर भी वो कार्गो का वेट एग्जांपल सिर्फ 2,000 टन ही आता है, जबकि आप 6,000 टन लोड कर सकते हो। बट हुआ क्या कि स्पेस भर गई, ओनली 2,000 टन लोड हुआ और 24,000। स्पेस भर गई। सर एक क्वेश्चन है बस, एक सॉरी, एक क्वेश्चन था कि जैसे पूरे होल्ड का जो स्टोरेज फैक्टर रहता है वो सेम रहता है ना? No, storage factor depends on the cargo बच्चे। यस सर। It is not on the by hold, it is on the cargo। हर कार्गो अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ओके सर। आप टेबल that is from the port side, sir. From the port, how much cargo our storage factor that is given from the port, sir. यस, सो स्टोरेज फैक्टर से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं कितने टन कार्गो लोड कर सकता हूँ। यस सर। वो Okay, sir. अलग Like जब सर स्टोरेज प्लान के लिए वो बोलते होंगे तो साथ में स्टोरेज फैक्टर वगैरह देते होंगे ना, उसी से कैलकुलेट करते होंगे कितना। यस, तो इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं इसको कि अब आपको नॉलेज आएगी। जब हम कल को कार्गो प्लान में जाएंगे या कार्गो लोडिंग में जाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें इमीडिएटली आपके मन में आएंगी। हाँ यार, नहीं यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना लोड कर सकते हैं, ये भी चेक करूंगा, ये भी चेक करूंगा, ये भी चेक करूंगा। सब
अब मेरे को यही चीज 2.5 जो अभी स्टोरेज फैक्टर दिया उसके अकॉर्डिंग तो 2400 टन लोड कर सकते हैं सर। चलो 2400 तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, चल आपने कैलकुलेट किया, मैं कहता हूँ 2400 टन आप इस कार्गो को लोड कर सकते हो, बट एज पर द लोड डेंसिटी आई कुड लोड 6000, बट 2400 ही में मेरा होल्ड भर गया, इजंट इट? तो अब जो शिप ओनर है अब वो फ्रेट किस रेट से चार्ज करे यार? यहाँ तो उसने तो शिप बनाया था जो 6000 टन कार्गो ले जा सकता है, अब यहाँ तो 2400 में ही होल्ड भर गया, तो 2400 टन का ही फ्रेट मिलेगा। पहले केस में था कि सर ऐसा नहीं होगा, जैसे अपन कार्गो के ऊपर कार्गो लोड कर रहे हैं सर, हमने अपनी प्लेट की तो कैपेसिटी देख ली कि हमारी प्लेट बैंड नहीं होगी और इतना हम लोड कर सकते हैं अपने लोड डेंसिटी के अकॉर्डिंग। हमने अपनी जहाज की देख ली कि इतना हम अगर 1 मीटर के ऊपर उसमें डालेंगे एरिया में तो हमारा मीटर स्क्वायर एरिया में इतना वेट डालेंगे तो हमारा बैंड नहीं होगा लाइक प्लेट। लेकिन सर जो अपन जैसे स्टील पाइप का आपने बोला, स्टील पाइप के ऊपर स्टील पाइप रखी जा रही है और वो एक पूरा होल्ड ऊपर तक रखी जा रही है, हो सकता है स्टील पाइप ही टेढ़ी हो जाए नीचे। दैट डिपेंड्स कि वो आपकी जो कार्गो प्लानिंग है वो आपने देखना है कि इसके नीचे का कार्गो से कहते हैं क्रशिंग, यस सर। ऊपर लोड करते के। अब एग्जांपल आपने नीचे केसेस लोड किए हुए हैं, प्लाईवुड के केसेस हैं, बॉक्सेस हैं, आप उसके ऊपर लोड करते जा रहे हो सेम लाइक कंटेनर्स। हाँ तब तो नहीं होगी मेरे साथ एक केस हुआ था, पूरा कंटेनर पिचक गया था। सिंपल लाइक कंटेनर्स कि आपने 10 आई लोड कर दी और नीचे वाला कंटेनर की टांगे टूट गई। और वो तो पूरा दब गया था, कंटेनर पूरा बेंड हो गया था। प्लीज, वो कब होगा? जब आपने ध्यान नहीं दिया। अब ये किस पे जाएगा सर? चीफ ऑफिसर पे, अगर वो टूट गया तो? चीफ ऑफिसर नहीं, शिप पे, ठीक है? फॉर एनीबडी एल्स आउटसाइड पीपल, चाहे वो कोई भी है, उनके लिए शिप इज वन थिंग, वो बाद में है कि शिप के अंदर किसको क्या करना है, बट इट इज कंसीडर द शिप हैज मेड अ मिस्टेक। तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं सर हम? उसके लिए क्या है जो मतलब कैसे देखें हम कि नीचे वाला पचक ना जाए? इसीलिए तो यही तो पढ़ाई कर रहे हो आप। अब इसीलिए तो हमने पहला चैप्टर शुरू किया कि अगर आपको ये समझ आ गई, आस्ते आस्ते जाएंगे ना, लास्ट चैप्टर पे तो नहीं आएंगे। बुक हम पहले कंटेनर की लोड डेंसिटी देखेंगे हम, पहले चैप्टर से पढ़ेंगे ना, बुक को लास्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे सर ये तो एबीसी तो पता ही नहीं, आपने तो इंग्लिश पढ़ा दी, एबीसी तो पढ़ा ही नहीं। ओके सर, ओके, ओके सर, थैंक यू। तो इसको समझिए, रटना नहीं है। ओके सर। हाँ, समझ के, उसको समझ के कि हाँ आई थिंक अब आपको क्लियर है कि हाँ यार स्टोरेज फैक्टर क्या होता है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बेल कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी। अब में अगर आपको जब हम जाएंगे कि कार्गो लोड करना है, यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम। लोड डेंसिटी भी आपने देख ली है कि हाँ यार उसने लोड डेंसिटी इतनी दी है, इसके अकॉर्डिंग तो मैं 6000 कर सकता था, बट ये कार्गो लाइट था, इसके लिए सिर्फ 2400 में ही भर गया। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएंगी। अब आ गया आपका फ्रेट का। अब फ्रेट का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इफ यू आर द शिप ओनर, आप जहाज चला रहे हो, आपने जहाज लिया, आपको तो 2400 टन का फ्रेट मिला, आपको यार मैंने इतना बड़ा जहाज खरीदा, 6000 टन लोड कर सकता था, एग्जांपल $50 पर टन मेरे को फ्रेट मिलना था, तो 6000 इंटू 50, $3000 या जितना भी बनता है, मेरे को तो आप सिर्फ 2400 टन का ही मिला फ्रेट। ये क्या हो गया? ये कैसे काम चलेगा? एंड दूसरे केस में आपकी स्पेस वाइज तो मैं 12000 टन लोड कर सकता था, ये 6000 में ही काम खत्म हो गया। तो सर वही चीज है ना, ब्रोकन स्टोरेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। करेक्ट, तो इसके लिए वो कहते हैं, सो दिस इज वन इज कॉल्ड द, एक तो आ गया वेट वाइज, एक आ गया स्पेस वाइज। या तो कार्गो स्पेस ज्यादा ले रहा है, या कार्गो जो है वेट वाइज ही मेरे शिप को फुल कर देता है, इजंट इट? यस सर। एक को हम कह देते हैं कि भी मेजरमेंट, तो शिप ओनर कहता नहीं भाई, आपका अगर लाइट कार्गो है तो मैं इसके चार्जेस मेजरमेंट के हिसाब से लूंगा भी, पर क्यूबिक मीटर, और सो मेनी टन, सो मेनी डॉलर्स, से $50 पर क्यूबिक मीटर। यस सर। ठीक है, या फिर वेट वाइज हुआ तो फिर वो कह देता है कि ओके भाई, आई विल चार्ज यू $60 पर टन। तो हम फ्रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी अगर उसने क्यूबिक वाइज लिया है
तो भाई उसका फ्रेट इतना है, अगर हैवी कार्गो है तो वो वेट वाइज होगा। सर इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो देखी जाती है कार्गो की जब ग्रेन कार्गो लोड करते हैं? नॉट हियर एट द मोमेंट, अभी आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ हम इसकी स्पेस में देखिए। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली स्टोरेज फैक्टर जो है आपको, इट गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कितना कार्गो मैंने लोड करना है। सो आपकी डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट बेसिकली वी डू इट वेयर वी आर लोडिंग लिक्विड कार्गोस, वहाँ पे वो काम आती है। ओके सर। ठीक है। सो सॉलिड कार्गोज के लिए हम यही करते हैं। चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं, टेक अ ब्रेक, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये फंडामेंटल्स थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके गुरुजी, थैंक यू। चलो 10 मिलते हैं 10:15 बजे। ओके थैंक यू सर। या वेलकम।